Well, thank you, Peter. Praise the Lord. It's so good to be back with my friends in India, and we're excited about this. We are we're going to be talking about the committed life in terms of leadership. So don't let the committed life thing think you think we changed the subject, because we have not changed the subject. But it is important for us to know uh, the commitment that we must have, how to be a leader, how not to be a leader, and the problems that can be involved there. मैं स्वागत करना चाहता हूं और प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आप सबों को जय मसीह की। हम भी बहुत ही उत्साहित और उत्सुक हैं इस माध्यम से कि हम लोग बैठकर सीख सकते हैं। मैं इस बात को नहीं भूला हूं कि हमारा शीर्षक प्रतिबद्धता, एक अगुवे की पहचान, और उसी पहचान में हम बढ़ते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रतिबद्धता प्रभु की सेवा और उसके काम के लिए है, उसे हम कभी भी तुच्छ ना जाने और उसमें आगे बढ़ते जाएं। It is important to know that Jesus came as a newborn baby. ये समझना बहुत ही जरूरी है कि यीशु मसीह एक जन्मे हुए शिशु के समान इस संसार में आए। God the Father could have done this in other ways, but when Jesus would not have been truly God and man. परमेश्वर पिता इसको दूसरे तरीके से कर सकते थे, लेकिन सच्चाई में यीशु संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण मनुष्य ना होता। Coming as a baby required he go through the same stages of maturation as all humans, physically, mentally, and spiritually. और एक शिशु के समान देहधारी होना उन सबों के समान ही होता जो आमतौर पर इस संसार में बच्चे पैदा होते हैं, जो शारीरिक, आत्मिक और भावनात्मक रूप से इस संसार में आते हैं। Couple sentences that are not printed there. This is important because as people become leaders, they need to go through a maturation process. और ये बातें शायद बाइबल में दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन एक अगुवे के लिए आवश्यक होगा कि इसी समान वो जन्म लेने के तरीके में अपने आप को ढाले। When a person accepts Christ Jesus, who has come in search of him and is born again, all the glory and authority contained within the born again one is present. और एक व्यक्ति जो प्रभु को ढूंढता हुआ प्रभु में विश्वास करके एक नया जन्म लेता है, उस व्यक्ति के अंदर इस सारी प्रक्रिया के गुण दिखाई पड़ते हैं। You can find that in John 17 verses 20 through 26. इसको हम यूहन्ना 17 20 से 26 के हम बीच में हम पाते हैं। This brings about, however, the necessity of the renewing of the mind to be considered. और ये मानने के लिए आवश्यक होगा कि कैसे मन का परिवर्तन, मन में नयापन हम ला सकते हैं। Just as the natural person has need of a mind to be considered here, so does the spiritual person. जैसे कि एक शारीरिक व्यक्ति भी अपने मन में सोचता है, वैसे ही एक आत्मिक व्यक्ति भी सोचे। Romans 12, 1 through 2. आप लिख सकते हैं रोमियो 12, 1 और 2। Just think of all the needs a baby has in every area of life. And it's difficult sometimes for us to realize that to be leaders, to be in front of a group, as far as leading them, we must go through stages as well. और एक छोटा बच्चे के अंदर ये सब दिखाई पड़ता है, और हम जो अगुवे के रूप में खड़े होना चाहते हैं लोगों के सम्मुख, ऐसी योग्यताएं हम में भी पनपनी होंगी। So Peter, if you would do Romans 12, 1 and 2, please. आइए मेरे साथ में आप
रोमियो 12वां अध्याय 1 और 2 पद को पढ़ेंगे। यहां लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। This is especially true of leadership. We see in Romans 12, 1 and 2, when a person is a Christian, they are to present their bodies a living sacrifice, renew their mind. All this is to prove what is good, acceptable, and perfect will of God. ये एक अगुवे के लिए आवश्यक होगा। एक व्यक्ति जो मसीह में अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और जो परमेश्वर को भावता हुआ है, उसको बलिदान के रूप में चढ़ाए। David, Jesse's son, was anointed king when he was a young shepherd boy, but was not up to the task the very first day. David needed to wait as Saul was still on the throne. David needed to progress in the renewing of his mind. So when his day came, he would understand how to use the power and authority he possessed. Let's look at 1 Samuel 16. जैसे दाऊद जो जस्सी का पुत्र था, जब शाऊल राजगद्दी पर था, उस राजा बनने की योग्यता पे ना था, परंतु दाऊद को उस समय में अपने आप को रखना आवश्यक था कि जब तक वो ना पहचाने, ना सीखे, ना जाने कि एक राजा किस प्रकार होगा, और जब वो राजा बना और उसने उन सारे अधिकारों को बहुखूबी निभाया। आइए हम पहले शमूएल की पुस्तक में जाएं। पहला शमूएल 16वां अध्याय 1 पद से हम लोग पढ़ रहे हैं। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल का राजा करने के लिए तुच्छ ना जाना। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंह में तेल भर कर चल, मैं तुझको बेतलहमासी यशे के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसको उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुन लिया है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूं? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले कर जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं, और यज्ञ पर यशे को न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी को उसका मेरी ओर से अभिषेक करना। David needed to be prepared to function as a king. दाऊद को एक राजा होने के लिए तैयार करना था। One of the first things we learn as David had to fight a giant. एक बात जो हमें सीखने की आवश्यकता है कि दाऊद को जो दानव है उनसे लड़ने की आवश्यकता थी। We are born on a planet where there is continual battle between the forces of God and the forces of Satan. हम एक ऐसे ग्रह में पैदा हुए हैं जहां पर लगातार युद्ध होता है परमेश्वर की शक्तियों और शैतान की शक्तियों के बीच। Battle tests a person, and for that battle, armor is required. The armor of the kingdom must be acquired by learning how to use it and how to wear it. एक युद्ध इस बात के लिए उस व्यक्ति को तैयार करता है या उसको निपुण बनाता है, और उस युद्ध में आवश्यक है कि उसके पास में लड़ने के औजार हो, और परमेश्वर के राज्य के जो औजार हैं या जो आर्मर है उन्हें कैसे पहनना है और उनको कैसे चलाना है, हमें सीखना होगा। To understand the wonder of the gift the Christian has received through Christ, it is necessary for the renewed mind to come to an understanding
of the preparation needed to be kings and priests in their place in the kingdom. ये बात को समझना बड़ा अचंभे की बात होगी कि एक मसीह जीवन में जो गुण, जो उपहार परमेश्वर यीशु मसीह में हमें प्राप्त हैं, वो एक व्यक्ति के मन के नए हो जाने के द्वारा, उसको समझने के द्वारा हमें तैयार करता है कि एक राजा, एक याजक जो परमेश्वर के राज्य में किस प्रकार तैयार होकर खड़ा होता है। So we're going to go to Revelation 5 in just a moment, Peter. 5:9 through 10. But this is what is so important in leadership, is the understanding of this. Sometimes people want to be in leadership and they just want to just take over right then, but they're not prepared. They may be one day be wonderful, phenomenal leaders. However, they must be prepared. और हम लोग प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 9 और 10 में जाते हैं और यहां हम पाते हैं कि एक अगुवा जो इस संसार में अगुवाई करना चाहता है, वे तुरंत अपनी जगहों को पकड़ लेते हैं। उनको ये मालूम नहीं होता कि उन्हें तैयारी के साथ में खड़ा होना है अगुवेपन में। Most people prefer not to have to wait. They just want it now. बहुत सारे लोग रुकना नहीं चाहते, तैयार नहीं होना चाहते, वे उसी समय उसे हथिया लेना चाहते हैं। As Peter said, we have been functioning together for more than 20 years now. और जैसे भाई पीटर ने कहा, हम करीबन 20 साल से ज्यादा आपस में काम कर रहे हैं। And Peter was well prepared in so many ways to be a leader because his love of the Lord to just want to serve was so evident. और भाई को इन सभी सालों में, इन गुजरे हुए सालों में इस तरीके से चीजों को सीखना और अपने आप को तैयार करना हुआ, जो मसीह के प्रेम में विवश करता है और परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करने में उन्होंने अपने आप को भरसक प्रयास में रखा। But over the years, you just become acquainted with things in just the human relationships of people that help you learn to structure how you lead and how you teach. और गुजरते हुए समय में आपसी संबंधों में इस बात का प्रदर्शन होता है कि कैसे हम सिखाएं, सीखें और कैसे अगुवाई करें। Maybe one of the single most important things beyond dedication to the Lord and consecration to it and this sort of thing is the ability to submit to the teaching of a person who is older in the Lord and has had more experience. और एक मुख्य बात जो व्यक्ति के अंदर दिखाई पड़ती है, वो है हमारा समर्पण परमेश्वर के प्रति और हमारा शुद्ध किया जाना परमेश्वर के प्रति, कि हम कैसे परमेश्वर की सेवा में अपने आप को संलग्न कर सकते हैं। Now, unless anybody might misunderstand something, let me point out that it's very important to know that when you step into leadership, so many people think, well, their life is so perfect and they never have challenges and everything is so. This is not so. The enemy wants to stop you. इससे पहले कि कोई मेरी बात को गलत समझे, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो अगुवाई में अपने आप को लेकर आता है, उसके लिए सब कुछ अच्छा ना होगा, यानी सब कुछ बेहतर, सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ने लगे, ऐसा ना होगा। आवश्यक होगा कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर की सेवा में अगुवाई में आया है, उसके लिए बहुत सारी चुनौतियों और बहुत सारी परीक्षाओं का सामना करना होगा। So as you can see, it's very important to understand. Remember, even the early apostles were having difficulties in getting the gospel out. They were even commanded not to talk about Jesus anymore.
और ये भी देखें कि शास्त्रों में जैसा हम पाते हैं कि पहले सदी के पहले प्रेरित लोगों ने किस प्रकार के जोखिमों को उठाया और बहुत बार उनको ये कहा गया कि इन शिक्षाओं को ना दें। I want you to notice, as the scriptures have revealed these people to us, how they did not allow the world to control their attitude. और ये बात हम देखें कि कैसे शास्त्रों ने उनके जीवनी को हमारे सामने उजागर किया है, ये जाने कि संसार ने उन्हें दबाने की कोशिश किया परंतु वे विजय हुए। One of the things that we learn in leadership and as we mature is we learn that when things sometimes look the most difficult, when they look the darkest, they look like there's no hope, is exactly when the Lord shows up to make sure that we are cared for. और जब हम अगुवाई के और उसकी परिपक्वता में हम जब आगे बढ़ते हैं और ऐसे समय जब हमारे सम्मुख आते हैं, जब हम पाते हैं कि हमारे सामने अंधियारा है, कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, वही समय होता है जब परमेश्वर आकर हमें उस मार्ग को, उस ज्योति को प्रदान करते हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। Who would have thought when in the town of Philippi, they were put into a jail, and while the other prisoners were listening, and it's very important in that scripture, the other prisoners were listening as the men of God were praising God in the midnight hour. They were just praising God. और उस फिलिपी नामक शहर में ऐसा ना दिखाई पड़ता, परंतु ऐसा हुआ कि जब वो उस जेल खाने में थे और उन्होंने देखा, उन्होंने सुना कि कैसे वे भजन गाते हुए परमेश्वर की आराधना करते हैं। I'm certain that when they went into that jail, मैं सोचता हूं जब वे उस कारावास में गए होंगे, they had no idea उनके पास में कोई सोचने का या कोई भी ज्ञान ना होता that the very man who held them in jail, the jailer, would end up becoming the pastor of the church in Philippi. कि वो जिसने उनको कारावास में डाला, यानी वो व्यक्ति, वो सिपाहीसालार जिसने उनको कारावास में डाला, वही आने वाली कलीसिया का अगुवा होगा जो उस फिलिपी शहर में थी। This is why it is very important for anyone, any Christian, but especially a leader. It's very important that the leader watch the words they say, that the words they say are only words of faith, not words of fear. और इसलिए आवश्यक होगा कि एक अगुवा जो अगुवाई करता है वो नकारात्मक बातों को कभी ना करे, परंतु हमेशा सकारात्मक विश्वास से भरे हुए शब्दों का इस्तेमाल करे। This is a very important difference that we must understand, because we speak faith, we speak the word of God. No matter how it looks in the natural, we know that we have God with us and in us in the Holy Spirit. और इसलिए आवश्यक होगा कि हम विश्वास की बातों को कहें, विश्वास जो वचन के द्वारा है, वचन का बखान करें, क्योंकि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया है, उसमें हम परिपक्वता में आगे बढ़ते जाएं। I will tell you that many people that I know, including Peter and others, have been through things that would have made other people just turn away and say, it's not worth it. I'm just not going to, I can't face this. With Christ, we can do all things, the scripture tells us. और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, और भाई पीटर हो चाहे मैं हूं, हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार अगर हम बात करें तो लोग कहेंगे कि ये सही नहीं है, ये हो नहीं सकता, ऐसा होना नहीं चाहिए। परंतु जो मसीह में होकर हम करते हैं और मसीह में
मसीह के द्वारा जो हम करते हैं वो कुछ सब कुछ संभव है। I will tell you that it is so important to remember you are never alone. Christ never leaves you. He's never not there with you. The Holy Spirit inhabits you, and you must allow that Holy Spirit to lead you so that you can lead others. और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कदापि अपने आप को अकेला ना समझें, कभी भी अपने आप को बिखरा हुआ ना समझें। परमेश्वर का आत्मा हम में है, परमेश्वर हमारे संग है और वो हमें नहीं तजता और हमें परमेश्वर में बने रहकर आगे बढ़ना है। These are details that are very important. If we build a building and we put the bricks in it, if we don't have the mortar to hold the bricks, the wall will fall down. We must have every little component that the Lord gives us in order for us to build on those components. और ये आवश्यक होगा कि जब हम एक दीवार को बनाते हैं, हमारे पास में सारी सामग्री हो और हर एक ईंट जब हम रखते हैं, उसको क्रमबद्ध तरीके से उसको बनाए रखने की सामग्री के साथ में उस दीवार को बनाएं, ताकि वो दीवार खड़ी रहे, बनी रहे। You know, in every task that we do in life, it takes steps to do it. Even if we're making bread, the making of the bread, if we have yeast in the bread and we have to knead the bread and then we have to wait for the bread to rise, and we must do all the things that are necessary to have it come about. The same is true in any kind of a leadership position, any kind of a position that you're committed to. And we're talking leadership, commitment, and commitment here. और देखें, किसी भी कार्य को करने के क्रम होते हैं, तरीके होते हैं। आवश्यक है कि हम क्रमबद्ध तरीके से हर एक चीज को करें। उदाहरण के रूप में एक ब्रेड को भी अगर हमें बनाना है तो उससे बनाने का एक तरीका है, उस तरीके से उसको बनाएं, गोथें और उसको हम बनाकर देखें कि वो किस प्रकार से उभर रहा है, किस प्रकार से वो पक रहा है और अंततः वो ब्रेड हमारे सामने बना हुआ दिखे। हम लोग मसीही अगुवाई की बात कर रहे हैं। हमारा अगुवेपन में जो परमेश्वर के प्रति प्रतिबद्धता है उसकी बात कर रहे हैं। कितना ही आवश्यक है कि हम भी क्रम के अनुसार इसको देखें। I cannot tell you the number of people I know who are in leadership in various places, that they have walked that path. And at first they felt like, I can't do this. Well, they were really right. They can't do it unless the Holy Spirit in them is directing them. And He will direct our paths. He will make our paths straight. He will give us wisdom beyond anything that we could come up with on our own. मैं बहुत सारे ऐसे अगुवों को जानता हूं जो उच्च स्तर पर, उच्च कोटि स्तर पर बनाए हुए हैं, रखे गए हैं परमेश्वर के द्वारा। आरंभ में वे भी बहुत बार ये कहते आए कि ये हो नहीं सकता, मैं नहीं कर सकता हूं, परंतु जब उन्होंने अपने आप को इस बात में पक्का किया, निर्भर किया कि परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अगुवाईपन हमारे सम्मुख है और वे उसमें बने रहकर परमेश्वर में नियुक्त किए गए। And remember, as we go forth in any kind of ministry effort, anything that God has called us to, we do not have an uncalling to our family. We must first be the leader in our own family. And by leader, I don't mean the dictator. I mean somebody who communicates love, affection in our own families, as well as to people out in the world. मैं कहना चाहता हूं, हम परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाए गए हैं। आवश्यक है कि हम में वो बुलाहट हो, हम में वो समर्पण हो और ये भी हम ना भूलें कि हमारी बुलाहट में परिवार भी शामिल है और परिवार के अंदर एक अगुवा जो है अपने समर्पण को इस प्रकार दिखाता है। वो प्रेम,
और उस सारी बातों में उनकी अगुवाई करता है, क्योंकि आवश्यक है कि एक व्यक्ति अपने परिवार की अगुवाई नहीं कर सकता तो वो कैसे कलीसिया की अगुवाई करेगा। You know, it does no good to win the whole world and lose your own home and family. हम पूरे संसार को जीत लें परंतु अपनी आत्मा को खो दें, अपने परिवार को खो दें तो उसका कोई लाभ ना होगा। I will tell you that the witness that comes from the family home as the children grow and become adults themselves is a witness that goes from generation to generation to generation. मैं बताना चाहता हूं कि जो अगुवाई और जो गवाही हम परिवार में एक छाप के रूप में छोड़ते हैं कि जिस प्रकार से हमने अगुवाई की है उस अगुवाईपन में हमारी जो पीढ़ी है उसका वो अनुसरण करती है और वो आशीष पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। We live in a time that is very trying of our souls. हम ऐसे समय में इस समय जीते हैं, हमारी आत्मा को कसौटी पर उतारा जा रहा है। We live in a time that hasn't been like any time that has gone before now. So we are facing things in the world around us that many people do not face. और हम ऐसे समय में जी रहे हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी और जो गुजरे हुए समय में किसी ने इसका अनुभव नहीं किया था। ये एक विषम काल है, विषम परिस्थितियों का समय है। We have been in the last days since the Bible times, since Christ ascended. We have been in the last days, but now we are in the end of days. हम ऐसे समय में हैं जिसमें हम परमेश्वर के संग थे और परमेश्वर हमारे संग रहा है, परंतु अंतिम समय में हम आए हैं जो ये प्रदर्शित करता है कि ये कठिन समय है। Now, what this means is that we are in, we use the term, we are in Bible times ourselves right now. मैं इसका अगर विश्लेषण करूं, हम ऐसे समय में हैं, कठिन समय में हैं, या इसको हम कहें कि हम बाइबल के समय में हैं। It's so important to understand this. ये बहुत ही आवश्यक होगा कि हम इस बात को समझें। God trusted us to put us here at this time and at this place. Now, I'm halfway around the world from you, but God placed you where you are to fulfill His will, His way in the now time. परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें स्थिर किया है। मैं आपसे बहुत ही दूरी पर हूं, लेकिन हम परमेश्वर के समय में हैं, परमेश्वर हमारे संग है और परमेश्वर कार्य कर रहा है। I have been telling the people here for several months now that this is a special time in which we live. मैं यहाँ के लोगों से बहुत समय से, यानी करीबन 2 महीनों से या उससे ज्यादा बताता आ रहा हूं कि हम लोग बहुत ही प्रमुख समय में जी रहे हैं। As you live the Christian life and you lead others in living the Christian life, and your commitment becomes apparent to people, they will come to you and ask you questions. हम जो मसीह सेवा में हैं, हम ये प्रदर्शित करते हैं कि हम मसीह में हैं और मसीह अगुवाई में हैं, और लोग इसकी पहचान करते हैं और लोग आकर आपसे पूछते हैं कि हम इसको कैसा करें। They will ask you questions such as, why are you not fearful the way we are fearful? वो आपसे Go ahead. वो आपसे आकर ये पूछेंगे कि आप ये कैसा कर सकते हैं, इसके प्रति तो हम भय खाते हैं, लेकिन आप इसको किस प्रकार कर रहे हैं। You see, what we do is foolishness to them according to the scriptures, but at the same time, they see something in us that they wish they had in them, and that is our lack of fear.
और वो हम में इन बातों को देखते हैं और वे हमारी ओर आकर कहते हैं ये गुण मुझ में नहीं है, मैं कैसे इसको पालूं, और वो हमारा अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। This is where faith comes in. और इस स्थान में विश्वास काम करता है। I want you to help people to understand something about faith. मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सिखाएं विश्वास क्या है। Faith and belief are not necessarily exactly the same thing. Can you come back again, Pastor? Faith and belief are not the same thing. विश्वास और दूसरा शब्द भी विश्वास है, यानी हमारे विश्वास की बातें और विश्वास ये दोनों अलग हैं, फर्क हैं। Belief says, I think that's okay. I use the example here of if I'm in a vehicle and I'm going to cross a bridge, I see the bridge, I approach the bridge because I believe the bridge will support me. मैं इसको इस प्रकार से कहूंगा, जो मेरी विश्वास की मान्यताएं हैं, यानी एक ब्रिज है, एक पुल है, और मैं देखता हूं कि पुल वहां है, और मैं विश्वास करता हूं कि ये पुल मेरी मदद करेगा कि मैं दूसरे पार पहुंच सकूं। That is belief. और ये विश्वास है। Now, faith is when you are on the bridge, when you're actually employing the bridge for your benefit. That is faith. विश्वास और भरोसा, एक भाई ने हमारी मदद की है, विश्वास और भरोसा। आप जब उस पुल के बीचों बीच होते हैं, आप पूर्ण विश्वास करते हैं कि मैं इस पुल पर बना हूं और ये पुल मेरी मदद करेगा कि मैं दूसरी ओर जा सकूं। Many times over the years, I've talked with people who said they believed, oh, I believe, I believe. But when it came right to it, they really didn't have the faith to carry it through. मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, बहुत सारे लोगों ने कहा हाँ मैंने विश्वास किया, हाँ मैंने विश्वास किया, लेकिन जब वो सही परिस्थिति वहां पर आई और उस परिस्थिति में उन्होंने देखा, तो अपने आप में वो विश्वास प्रकट ना कर पाए, नहीं दिखा पाए कि वो जो उन्होंने विश्वास किया था। Faith will verify your leadership. विश्वास जो है आपके अगुवेपन को पक्के रूप में दिखाएगी या वेरीफाई करेगी। Anyone can say the bridge, for example, that I just spoke of, that bridge I think will hold me. जैसे मैंने इस पुल की बात की, और बहुत सारे लोग सोचते हैं वो पुल मुझे बने रहने में मदद करेगा। But when they are on the bridge, लेकिन जब वो पुल के ऊपर होते हैं, that's what provides faith leadership. वो अगुवेपन को, उस अगुवेपन के विश्वास को हमें दिखाती है। What would you think if I told you that the bridge was strong and that then the bridge would hold us, but then I ask you to go on the bridge first? मैं आपसे अगर कहूं कि वो पुल मजबूत है, वो पुल आपको बनाए रखेगा, और मैं आपसे कहता हूं कि आप पहले जाएं उस पुल के ऊपर, You might think, I didn't really think the bridge was going to hold me. I hoped it would because I had some belief, but I sent you out there to make sure that it was going to hold you. Then I would put myself there. आप सोचेंगे कि ये व्यक्ति ने तो मुझसे कहा कि आप पहले जाएं, शायद हो सकता है कि इनके विश्वास की मान्यता ये है, ये मन में है कि क्या ये पुल उनको बना के रखेगा या नहीं रखेगा, और इसी कारण हो सकता है कि मैंने आपसे पहले कहा कि आप उस पुल के ऊपर पहले जाएं। I will tell you, you can have a group full of belief, but you can also have a group that is a much stronger group full of faith. मैं आपसे कहूं कि आपके पास में बहुत सारे
विश्वास की मान्यता रखने वाले लोगों का झुंड होगा, परंतु मैं आपसे कहूं कि ऐसा झुंड जो विश्वास से भरा है, वो झुंड भी आपके पास हो। The belief group will stand back from the bridge and discuss the bridge and argue about the bridge and talk about the bridge. जो The faith विश्वास group, go ahead. जो विश्वास की मान्यता रखने वाले लोगों का झुंड होगा, वो किनारे पे रहकर उस पुल के विषय में बात करेंगे, उस पुल की मजबूती के बारे में बात करेंगे, उस पुल की आलोचना को करते हुए बात करेंगे। The faith group will go out on the bridge, stand on the bridge, jump up and down on the bridge, and say to the people who haven't come to the bridge yet, come on. और विश्वास से भरे हुआ झुंड अगर आपके पास होगा, तो वो विश्वास से भरा हुआ झुंड उस पुल के ऊपर पहले कदम बढ़ाएगा, उस पुल के ऊपर जाकर कूदेगा और उन लोगों को जो किनारे पे खड़े हैं उनसे कहेगा, आइए आप भी इस पुल के ऊपर आइए और उस पार चलिए। Now that is faith leadership. तो ये विश्वास से भरा हुआ अगुवाई है। And the person with the faith would not be able to do that if they had not fully received the gift of faith, because faith is a gift. और ये अगुवाई करने वाला, ये विश्वास से भरा हुआ अगुवा कदापि विश्वास के जो गिफ्ट है, यानी वरदान है, जो विश्वास का वरदान उससे ना प्राप्त हुआ हो, वो ऐसा अगुवाई ना कर पाएगा। I like to explain to people, and this is why there's preparation for leadership or preparation with anything in the Christian life, but especially leadership. और इसी कारण मैं बहुत सारे लोगों को सिखाता हूं, समझाता हूं कि अगुवाई के लिए एक तैयारी है, एक तैयारी होने का समय है, तैयार होने का समय है। Now I was born with all the muscles that I needed to do whatever I needed to do. But had I not exercised those muscles, had I not learned to turn myself over and then to crawl and then to stand up and walk, those muscles would never have been developed. मैं उन सारे मांसपेशियों के साथ में पैदा हुआ हूं जिससे मैं सब कुछ कर सकता हूं, सारे काम किए जा सकते हैं। कदापि अगर मैंने अपने आप को परिश्रम और व्यायाम में ना डाला हो, उन सारे मांसपेशियों को तैयार ना किया हो, चाहे वो बचपन से रेंगने के द्वारा, घुटनों पे चलने के द्वारा और चलने के प्रयास के द्वारा हो, मैंने उसको ना किया हो, तो मैं कदापि उन कामों को ना कर पाऊंगा। We are told in scripture to build up our most holy faith. हमें शास्त्रों में, वचन में बताया गया है कि हम अपने विश्वास की बातों को बढ़ाएं, बनाएं। Faith is a gift, but it's a gift like our muscles that must be exercised, must be built up in order that we can fully function. विश्वास एक वरदान है, और जैसा मांसपेशियों का, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि हम जब तक उस व्यायाम में, उस तरीके में, उस परिश्रम में अपने आप को ना डालकर तैयार ना हो, तो विश्वास भी उसी प्रकार देखा जाएगा। Even King David in the scripture we used earlier, he had to learn to do things. And when he went out to then decided he was going to go get Goliath, he had talked about, he had fought the lion, he had fought the bear, he had been built up. So sometimes we fight the smaller things before we get to the bigger things. और जैसे पहले भी हमने दाऊद का उदाहरण लिया, और दाऊद किस प्रकार से तैयार किया गया, और हम देखते हैं वचन में दिखाया गया है कि उसने किस प्रकार से गोलियात का सामना किया। लेकिन जब वो गोलियात के सम्मुख था, तो उसने लोगों के सामने ये प्रकट किया कि कैसे उसने बचपन से उस गडरिये के रूप में छोटे छोटे जो शत्रु हैं उनका सामना करना सीखा, और अब वो इस बड़े गोलियात का सामना कर रहा है। Faith sees a thing or a matter done before it is. विश्वास
विश्वास की आंखों से उन चीजों को देख लेता है जो अभी हुई नहीं है परंतु होते हुए देख लेता है। Belief, on the other hand, hopes it's true, wants it to be true, thinks it might be true, but belief cannot lead, only faith can lead. विश्वास की, परंतु दूसरे ओर विश्वास की मान्यता ऐसी होगी, आशा है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो जाए, परंतु विश्वास से भरा हुआ होना ऐसे बातों को ना कहेगा। Now, what do we do in leadership or in any kind of faith is we do what? We first pray, seeking the guidance of the Holy Spirit. हम अगुवेपन में हम क्या करते हैं? हम पहली बातों को, बुनियादी बातों को पहले लेकर आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास के द्वारा उसको अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। I teach people, do not come up with a plan to serve God that you think is a godly, wonderful plan, and then go to God and ask God to bless your plan. मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूं या सिखाता हूं कि एक योजना को तैयार करके जो मसीह सेवा के प्रति है उसको तैयार करके परमेश्वर के सामने आकर ऐसा ना कहें, परमेश्वर इस योजना को आप आशीषित करें, ये मेरी प्रार्थना है। So I teach them not to do that. मैं उन्हें सिखाता हूं ऐसा ना करें। What I teach them to do is there is a clue in Scripture about this. मैं क्या Go ahead. मैं क्या सिखाता हूं? मैं उन्हें कहता हूं कि शास्त्रों में इसको करने का एक प्रक्रिया दिखाया गया है। And that clue is found in the book of Jeremiah. और इसका जो एक चिन्ह है वो यिर्मयाह की पुस्तक में दिखाई गई है। In the book of Jeremiah, Jeremiah says that God knows the plans he has for you when you are still in your mother's womb. और यिर्मयाह क्या कहता है? यिर्मयाह कहता है कि एक योजना बनाई गई है, एक अच्छा सिद्ध योजना बनी हुई है, इससे पहले कि तुम मां के गर्भ में रचा जाए वो लिखी गई है। I say to you, seek God. मैं कहूंगा कि परमेश्वर को खोजें। Seek God for the plan that he put in you when you were in your mother's womb. उस योजना को ढूंढें जो परमेश्वर ने आपकी मां के गर्भ में रचे जाने से पहले ही रच रखा है। This is a very important part of commitment and leadership. ये सबसे मुख्य बात है एक अगुवाईपन में और उसके समर्पण के विषय में। God already has a plan in you to do something. Seek to know what that plan is because that plan is already blessed by him. और परमेश्वर ने पहले से ही एक योजना बनाई है और वो योजना आप में है और परमेश्वर ने उस योजना को पहले से ही आशीषित किया है। I hope you can see how important this is. मैं आशा करता हूं कि आप देख पा रहे हैं कि ये कितना प्रमुख बात है, कितनी मुख्य बात है। God enables us to walk in faith. परमेश्वर हमारी मदद करता है कि हम विश्वास के कदमों को बढ़ाएं। And as he enables us, our minds become renewed, more trusting because our faith is built up. और जब हम ऐसा करते हैं हमारा मन का नया होता जाता है और हमारे विश्वास बढ़ता हुआ जाता है। I will tell you, the power of faith cannot be stopped by anything because it's God's move. मैं कहना चाहता हूं विश्वास की ताकत कोई नहीं रोक सकता क्योंकि वो परमेश्वर में होकर आगे आता है। This is such an important thing to grasp because there is so much of commitment needed in the body of Christ, and there are so many people who need to be leaders. All you need to do is look around you and you'll see there are so many people who don't know Jesus, but when they come to Jesus,
they need someone to disciple them. They need some form of leadership. और ये कितनी आवश्यक है, कितनी जरूरी बात है कि लोग देखें, लोग समझें कि अगुवेपन में परमेश्वर हमें खड़ा करता है और ये लोग देखकर आपका अनुसरण करेंगे। I cannot find a way to impart something more important to the person who's already a believer than the things that I'm saying to you now. और मैं इस बात को नहीं समझ सकता कि किस तरीके से परमेश्वर ने आपको अगुवेपन में रखा है और लोग आपको उसमें देखते हैं। Now, Peter, I'm going back to the slide. To understand the wonder of the gift the Christian has received through Christ, it is necessary for the renewed mind to come to an understanding of the preparation needed to be kings and priests in their place in the kingdom. और इसलिए ये आवश्यक है कि लोग समझें कि मसीह जीवन में जो उपहार के रूप में हमें मसीह में प्राप्त हुआ है, उस मन के नएपन में, मन के नए हो जाने में इस बात को समझें कि जो लोग परमेश्वर के राज्य में स्थापित किए गए हैं एक राजा और याजक के रूप में, वो किस प्रकार तैयार किए जाएं। So then, we look here at Revelation 5, 9, and 10, Peter. और इसलिए हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय 9 और 10 पद में देखते हैं। So they sang a new song. That song is because they were leaders, because the blood of Christ covered them, because they carried out the plan of Christ in their life. वे ये नया गीत गाते हैं और इसलिए गाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उस स्थान पर नियुक्त किया, उन्हें उस स्थान पर बनाया। This then is a process not of earning the free gift of salvation, but in the learning of how to function within the gift. ये एक क्रम है, बनाए जाने का तरीका है, इसको हम कमा नहीं सकते, विश्वास को या उद्धार को हम कमा नहीं सकते। ये एक उद्धार एक वरदान है और इस वरदान में हम किस प्रकार सीख कर आगे काम करते हैं, इस वरदान में हम सीख सकते हैं। As I was saying at the beginning, the child must become an adult with a renewed mind to the glory of God. जैसे मैंने पहले भी कहा, एक नवजात शिशु एक वृद्ध व्यक्ति, एक प्रौढ़ व्यक्ति में मसीह के मन के अनुसार नए हो जाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए बनता जाए। This is accomplished by presenting our bodies as a living sacrifice unto the Lord. ये बनाया जाता है या स्थिर किया जाता है जब हम अपने शरीरों को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को सौंपें। Now note, this is not limited to believers only in the area of proper sexual behavior, but the understanding that the believer is the residing place of Holy Spirit, and therefore for the use of Jesus Christ as his body in the earth. और देखें, ये उन लोगों तक, उन विश्वासियों तक ही लिमिटेड नहीं है या उन्हीं विश्वासियों तक रुका नहीं है, परंतु ये कि हम किस प्रकार सेक्सुअल बिहेवियर यानी जो शारीरिक सेक्सुअल बिहेवियर है उस तक ही नहीं, परंतु ये समझ में कि विश्वासी के हृदय में पवित्र आत्मा बसता है और वो अपने शरीर को इस पृथ्वी पर किस प्रकार यीशु के हाथ में सौंप कर इस्तेमाल किए जाने में अपने आप को दे देता है। The Godhead does God's work in and around through the Christian as the believer permits.
परमेश्वरत्व के कार्य में परमेश्वर उस विश्वासी को किस प्रकार काम करने में तैयार करता है, जैसा वो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के हाथ में उपयोगी होने में दे देता है। Let me just repeat part of that. As the believer permits, we must permit God to do his will in and through us. मैं इस बात को फिर से दोहराऊंगा कि कैसे एक विश्वासी अपने आप को उपयोगी होने के लिए अनुमति देता है, वैसे ही वे परमेश्वर को उनके जीवन में काम करने के लिए, काम होने देने के लिए परमेश्वर को अनुमति देता है। The believer, or better said, the person operating in faith, is able to demonstrate the power and authority of the Holy Spirit's occupying them to carry out the task that have been entrusted to them. एक विश्वासी, या दूसरे शब्दों में वो व्यक्ति जो विश्वास से भरा हुआ है, अपने आप को पवित्र आत्मा के उस सामर्थी हाथों में देता है, उस काम को प्रदर्शित करने में कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया, बुलाया और उसके हाथों में इस कामों को सौंपा है। Understanding the work accomplished on the cross by Jesus the Christ involved salvation, healing, deliverance, and the ongoing presence of the Christian in the Christian is essential to the renewing of the mind to the work of the gospel. ये बात को समझना कि मसीह के द्वारा जो कलवरी क्रूस पर पूर्ण किया गया या स्थापित किया गया, इन बातों को उसमें हमारे लिए प्रदर्शित करता है या उन बातों को हमारे सम्मुख लाता है जो उद्धार, चंगाई, छुटकारा और उन आने वाली या उन होने वाली चीजों में हमें बनाए रखता है। विश्वासी के लिए, एक मसीह के लिए आवश्यक है कि इन बातों को वो मन के नए हो जाने के द्वारा अपने आप को सुसमाचार के कामों में सौंप दे। It is my hope that you have gotten something from this message that I'm delivering to you on this Saturday morning in India. मेरी ये आशा है कि आप इन बातों को समझ पा रहे हैं इस शनिवार की सुबह, जिन बातों को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, सिखाने की कोशिश की है।